students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Compatible Learning. So those who are new to my channel, let me tell you guys that this channel is helping those candidates who are preparing for any competitive exam like banking, SSC, insurance or any other state government exam. So if you are preparing for any competitive exam, then do subscribe and hit the bell icon for the useful content. So without waiting, let's begin with the video. So guys, today I am here with a new Warrior series of IBPS, RRB, PO and clerk. This is mini mock test 1 day 1 for IBPS, RRB, PO and clerk. So without waiting, so here we go with the first question of inequality. It says in these questions relationship between different elements is shown in the statement. Some statements are followed by some conclusion. So choose the correct answer on the basis of the following information. Fine. So 6 is greater than 9. In this particular statement, we need to check that 6 is making the relationship of greater than with 9 or not. We can move from 6 to 2 and from 2 to 10 and from 10 to 7 and from 7 to 9. And we have minimum one time requirement also goes fulfilled. So in this way, first option is correct. Let's see the second option. Second option is 9 less than is equal to 2. So we need to move forward from 2 to 9 because the opening gate is in the front of 2. So we can move forward from 2 to 10 and from 10 to 7 and from 7 to 9. But after 7, we do not have greater than is equal to sign here. So in this way, this conclusion will be false. So first option is the correct answer. I hope this is clear to you. So let's see the next question. Yeah, so here is the second question. It says P is less than Q. We need to move forward from Q to P. But after Q, you have the closing gate. You cannot move further. Since you cannot move further, so in this way, this will be false. Let's see the second conclusion. S greater than is equal to P. So we need to move forward from S to C and from C to R and from R to P. Right? And we have greater than and greater than is equal to sign in the whole path. So in this way, second conclusion will be true. Fine. So let's see the third question. Third question is T greater than R. We can move from T to D and from D to P and from P to R. And we have minimum one time requirement also goes fulfilled. So in this way, this is true. So let's see the next question. D greater than F. D ग्रेटर देन D से हम P तक जा सकते हैं और P से यहाँ पे क्या है क्लोजिंग गेट है. सो इन दिस वे दिस इज फॉल्स. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. S greater than T. S greater than T, we need to move forward from S to T, but after S you have this closing gate. So in this way this will be false. Let's see the another option. It says V greater than Q. So we need to move forward from V to S and from S to P and from P to Q. And you have minimum one time requirement also goes fulfilled here. So in this way this option is true. Fine. So let's see the next one. U greater than G or G is smaller than U. We need to move forward from U to G. U से जा सकते हैं J पे और J से गए हम G पे. But the minimum one time requirement of this sign does not goes fulfilled. So in this way this will be false. Let's see the second conclusion. J greater than R. We need to move forward from J to U and from U to Y and from Y to R. And you have minimum one time requirement also goes fulfilled. Maximum जितनी मर्जी बार आए. So in this way second option will be true. I hope this all inequality questions are clear to you. So let's see आगे कौन से questions हैं. Okay, सिलॉक्स के question है. Let's see कैसे डील करेंगे इनको. सो स्टेटमेंट इज़ नो साइकिल इज़ टायर. कोई भी साइकिल जो है वो टायर नहीं है. ओके. नेक्स्ट क्या कहता है. नॉट अ सिंगल टायर इज़ ट्यूब. कोई भी टायर क्या है ट्यूब नहीं है. सो नो टायर इज़ ट्यूब. फाइन. ओके. सो नेक्स्ट इज़ एवरी ट्यूब इज़ पंचर. सारी की सारी ट्यूब क्या है पंचर है. ठीक है. ये हमारा हो गया है बेसिक डायग्राम. सो लेट्स सी द फर्स्ट कंक्लूजन. इट सेज सम पंचर विच आर ट्यूब. कुछ पंचर जो ट्यूब्स हैं विच आर ट्यूब आर साइकिल एज वेल. जो पंचर ट्यूब हैं वो साइकिल भी हैं. लेकिन ना ही ट्यूब का और ना ही पंचर का कोई भी रिलेशन है साइकिल के साथ डायरेक्ट में. सो इन दिस वे दिस विल बी फॉल्स.
लेट्स सी द सेकेंड वन, नो साइकिल इज ट्यूब, कोई भी साइकिल ट्यूब नहीं है। ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि 9 में हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर हम साइकिल को इस तरीके से यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, तो फिर ये सम का रिलेशन बना देगा और 9 का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फाइन, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये हमारा पॉसिबिलिटी डायग्राम था जिसके थ्रू हमने इसको फॉल्स किया। फाइन, सो लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन, सम पंचर आर नॉट टायर, कुछ जो पंचर हैं वो टायर नहीं है। बिल्कुल कुछ पंचर जो हैं वो टायर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम सारा का सारा पंचर टायर में डालेंगे तो टायर का और ट्यूब का रिलेशन बन जाएगा और इससे हमारी जो स्टेटमेंट है वो वॉयलेट हो जाएगी। सो इसलिए ये सही बोल रहा है कि कुछ जो पंचर हैं वो टायर में डेफिनेटली नहीं जा सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इट सेज अ फ्यू मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर, कुछ जो मैकेनिक्स हैं वो प्लम्बर नहीं हैं। मैकेनिक का कुछ पोर्शन प्लम्बर नहीं है। फाइन, उसके बाद कहता है ऑल प्लम्बर आर क्वालिफाइड, सारे के सारे प्लम्बर क्या हैं, क्वालिफाइड हैं। ओके, नेक्स्ट इट सेज नो क्वालिफाइड इज स्किल, कोई भी क्वालिफाइड क्या है, स्किल्ड नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है नो स्किल्ड इज़ अ प्लम्बर, कोई भी स्किल्ड प्लम्बर नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई भी स्किल्ड प्लम्बर नहीं है, क्योंकि जो भी प्लम्बर, जो भी क्वालिफाइड के अंदर एलिमेंट है उसका भी नो का ही रिलेशन होगा स्किल के साथ। ठीक है ना, जब इन दोनों का नो का रिलेशन है तो इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका भी आपस में नो का ही रिलेशन होगा। सो इन दिस वे फर्स्ट वन इज ट्रू। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नो मैकेनिक इज़ स्किल, कोई भी मैकेनिक स्किल नहीं है। अगर हम मैकेनिक को इस तरीके से बना देंगे पॉसिबल डायग्राम में, ठीक है, और फिर मैकेनिक का सम नॉट का रिलेशन इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं प्लम्बर के साथ, तो इसलिए ये कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमने सम का रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करके देखा और वो कोई भी स्टेटमेंट को जो है वॉयलेट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, लेट्स सी द थर्ड वन, सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक्स, कुछ जो प्लम्बर्स हैं वो मैकेनिक्स नहीं हैं। देखिए, कुछ प्लम्बर, ये जो कुछ प्लम्बर हैं वो मैकेनिक्स नहीं हैं। सारे के सारे प्लम्बर जो है मैकेनिक में जा सकते हैं, लेकिन सारा का सारा मैकेनिक प्लम्बर में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमें बोला है कि कुछ मैकेनिक, अ फ्यू मैकेनिक आर नॉट प्लम्बर, कुछ मैकेनिक प्लम्बर नहीं है, लेकिन सारे के सारे प्लम्बर तो मैकेनिक हो ही सकते हैं। सो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फाइन, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नो पैंथर इज जैगुआर, कोई भी पैंथर जो है जैगुआर नहीं है। ओके, नेक्स्ट इट सेज नॉट अ सिंगल जैगुआर इज प्यूमा, कोई भी जैगुआर क्या है, प्यूमा नहीं है। ओके, आगे क्या कहता है, एवरी प्यूमा इज चीता, हर एक प्यूमा क्या है, चीता है। ऑल प्यूमा आर चीता। ठीक है ना, कंक्लूजन फर्स्ट क्या बोलता है, सम चीता विच आर प्यूमा, कुछ जो चीता है जो प्यूमा है, आर पैंथर, वो पैंथर भी है। गलत बोल रहा है, जैसे हमने पहले भी ऐसा एक स्टेटमेंट देखा था। ये फॉल्स है, क्योंकि जब पैंथर का इनके साथ सम का कोई रिलेशन नहीं है तो वो पैंथर के साथ ना ही प्यूमा रिलेशन बना सकता है और ना ही चीता रिलेशन बना सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, नो पैंथर इज प्यूमा, कोई भी पैंथर क्या है, प्यूमा नहीं है। अगर हम पैंथर को इस तरीके से बना देंगे पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम में, तो ये पैंथर इसके साथ रिलेशन बना लेगा और नो वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फाइन, नेक्स्ट क्या कहता है, सम चीता आर नॉट जैगुआर, कुछ जो चीता है वो जैगुआर नहीं है, कुछ चीता जैगुआर नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा है, जैसे हमने पहले भी ऐसी स्टेटमेंट देखी, अगर हम सारे के सारे चीता को जैगुआर में ऐसे करके डाल देंगे तो फिर जैगुआर का और इसका प्यूमा का सम का रिलेशन बन जाएगा ना, तो सम का रिलेशन हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो नो का रिलेशन बता रहा है। ठीक है ना, ये तो नो का रिलेशन बता रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा कि कुछ जो चीता है वो डेफिनेटली जैगुआर में नहीं जा सकते। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोडेड ब्लड रिलेशन से।
हमें कुछ डायरेक्शंस गिवन है और उस डायरेक्शन के बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हाउ इज़ W रिलेटेड टू K फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हमें बताना है कि W का रिलेशन K से क्या है। सबसे पहले हम इसका एक ब्लड रिलेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस एक्सप्रेशन से ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉलोइंग डायरेक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले J@K मीन्स J इज़ द सन ऑफ K, फाइन। नेक्स्ट कहता है K एक्सक्लामेटरी T मीन्स कि K इज़ द मदर ऑफ T, फाइन। इट मीन्स K जो है T की मदर है और T जो है सिबलिंग होगा J का। उसके बाद बोलता है T*W मीन्स कि T इज़ द ब्रदर ऑफ W, ठीक है ना। T क्या होगा, ब्रदर होगा W का। नेक्स्ट कहता है W?X मीन्स कि X इज़ द डॉटर ऑफ W, X जो है डॉटर होगी W की। नेक्स्ट क्या कहता है X#Z मीन्स Z is the father of X, it means Z will be the father of X। अगर Z father है X का, it means कि W is the wife of Z, ठीक है ना। हमें क्या बताना है कि W का रिलेशन क्या है K से। W will be the daughter of K, fine। W will be the daughter of K. B option will be our correct answer. Fine. I hope this question is clear to you. Let's see the next question. Next question is, again it is based on the coded blood relation as you have seen the direction previously. आप डायरेक्शन को वहाँ से रेफ़र कर लीजिए। आपको मैं यहाँ पे भी डिक्टेट कर देती हूँ कि डायरेक्शन क्या है। A*D मीन्स कि X इज़ द ब्रदर ऑफ Y, इट मीन्स A इज़ ऑल्सो द ब्रदर ऑफ D, A विल बी द ब्रदर ऑफ D। नेक्स्ट कहता है D एक्सक्लामेटरी साइन Z मीन्स कि D इज़ द मदर ऑफ Z, फाइन। D will be the mother of Z। नेक्स्ट कहता है Z एक्सक्लामेटरी P मीन्स Z is the mother of P, फाइन। नेक्स्ट कहता है P@K, @K मीन्स कि P is the son of K, it means P is the son of K, it means K will be the husband of Z, फाइन। नेक्स्ट कहता है K*T मीन्स K इज़ द ब्रदर ऑफ T, K जो है T का ब्रदर है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हाउ इज़ T रिलेटेड टू Z। T का हमें जेंडर ही पता नहीं है तो T का रिलेशन हम बता ही नहीं सकते Z से क्या है। अदरवाइज़ ये क्या होता है, या तो ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा, डाटा इनएडुकेट, फाइन। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बॉक्स पेस पजल है एक। देखिए हम कैसे करेंगे इसे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, 9 बॉक्सेस नेम्ड ABCDEFGHI आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं। 9 बॉक्स हम ले लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है, ओनली 5 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में कितने हैं, 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। A और C के बीच में हमारे पास है 5 बॉक्सेस, ठीक है। आगे क्या कहता है, E इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली अबव C, यानी C के इमीडिएटली अबव क्या है, E है। देखिए A और C के बीच में 5 बॉक्सेस हैं और E इमीडिएटली अबव बैठेगा C के, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन E एंड D। E और D के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। E और D के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। नेक्स्ट कहता है, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन A एंड D इज़ सेम एज बिटवीन B एंड E। A और D के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही D और B के बीच में हैं। तो इस तरीके से आप कंडीशंस को लिख लीजिए, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है,
एफ इज़ प्लेस बिलो बी, बी के नीचे आएगा एफ, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बट नॉट एट द बॉटम, यानी कि एफ जो है वो बॉटम प्लेस पे नहीं है। नेक्स्ट कहता है नॉट लेस देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 4 से कम बॉक्सेस नहीं होने चाहिए। आगे क्या कहता है ओनली 1 बॉक्स इज़ बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है, बॉक्स आई इज़ प्लेस अबव एच, आई जो है एच के अबव है। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई सर्टेन कंडीशन नहीं मिली जिसको हम लेके आगे फिक्स कर सकते थे, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। फाइन, पॉसिबिलिटी लेके देखेंगे हम, सबसे ज़्यादा जिन बॉक्सेस में गैप होगा वो वाली पॉसिबिलिटी सबसे पहले लेंगे। तो ए और सी में 5 बॉक्सेस हैं, तो इस वाली कंडीशन को हम सबसे पहले फिक्स करेंगे। लेट्स से एक हमने कंडीशन ले ली कि एक बार हमने ए को यहाँ ले लिया, ठीक है, और 5 बॉक्सेस छोड़ के हम सी ऊपर ले लेंगे, 1 2 3 4 5, और सी को हमने ले लिया यहाँ पे और ई आ गया इसके इमिडिएटली ऊपर, ठीक है। और एक बार हम ए को ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने ले लिया सी को और यहाँ पे हमारा आ गया ई। फाइन, उसके बाद ई और डी में 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 ई के इस तरफ ऊपर तो नहीं जा सकते, तो नीचे आएंगे, तो 1 2 3 और यहाँ पे आएगा आपका डी, और इस केस में 1 2 3 और यहाँ पे आ गया आपका डी, ठीक है ना। उसके बाद हमें बताया गया था कि ए और डी में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही डी और बी में हैं। अगर ए और डी में 2 बॉक्सेस हैं तो डी और बी में भी 2 बॉक्सेस होंगे, ठीक है ना। तो डी और बी में भी 2 बॉक्सेस होंगे। सॉरी, द लाइन इज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ए एंड डी सेम एज बिटवीन बी एंड ई, ए और डी में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बी और ई में हैं, ठीक है ना, बी एंड ई। फाइन, तो ए और डी में 2 बॉक्सेस हैं, तो बी और ई में भी 2 बॉक्स होंगे, यानी 1 और 2, और यहाँ पे आएगा बी। फाइन, तो इसी तरीके से अगर ए और डी में 2 बॉक्सेस हैं उतने ही बी और ई में होंगे, तो यानी यहाँ पे आएगा बी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना हो जाता है हमारा, जो कंडीशंस हमने लिखी हैं ये फुलफिल हो गई हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, क्या बोला था कि एफ इज़ बिलो बी, एफ बी के नीचे है, तो एफ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, तो यहाँ पे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसके आगे देखिए बट नॉट एट द बॉटम, एफ बी के नीचे है लेकिन बॉटम पे नहीं है, तो एफ या तो यहाँ हो सकता है इस कंडीशन में, या तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता लास्ट में, और एफ इस केस में इन दोनों प्लेसेस पे हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है नॉट लेस देन 4 बॉक्सेस बिटवीन ई और एफ, ई और एफ में 4 से कम बॉक्सेस नहीं होने चाहिए। अब देखिए अगर हम 1 2 3 4 4 बॉक्सेस तो चाहिए चाहिए, तो एफ यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस केस में देखिए ई 1 2 3 4 4 बॉक्सेस तो चाहिए चाहिए, तो एफ या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1 बॉक्स बिटवीन एफ और जी, एफ और जी में एक बॉक्स है। अगर इस ये वाली कंडीशन में अगर एफ यहाँ पे रखते हो, एफ डैश जी आप कहाँ पे रखोगे, क्योंकि यहाँ पे तो डी है, यहाँ पे डी बैठा है, ठीक है, तो इट मीन्स आप यहाँ पे तो रख नहीं सकते, ठीक है ना। अब इसके ऊपर वाला बॉक्स देखो, बॉक्स नंबर 3, अगर एफ यहाँ पे रखोगे तब भी एक छोड़ के ना तो जी नीचे आ सकता है और ना ही जी ऊपर में आ सकता है, क्योंकि ऊपर में बी बैठा है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन तो यहीं पे क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। अगर इस केस में देखिए अगर एफ़ आप 4th प्लेस पे रखोगे तो एफ डैश जी ऊपर में जगह नहीं है और नीचे भी जगह नहीं है, क्योंकि नीचे आपका ए बैठा है, ठीक है ना। तो इट मीन्स ए की प्लेस बचती है एफ़ की, वो बचती है 3rd प्लेस पे, इट मीन्स एफ़ यहाँ आएगा और एफ डैश जी फिर जो है आपका 1st प्लेस पे बॉटम पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना होते ही उसके बाद क्या बोल रहा है, बॉक्स आई इज़ अबव एच, आई जो है एच के अबव है, एक ये कंडीशन थी और एक ये कंडीशन है आई इज़ अबव एच। अच्छा, तो 2 ही प्लेसेस यहाँ पे खाली बची हैं, तो यानी कि आई यहाँ पे आ जाता है और एच यहाँ पे आ जाता है, बाकी सारी कंडीशंस हमने क्या कर ली हैं, फिक्स कर ली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बॉक्स डायग्राम को बनाएंगे। आई होप दिस पजल इज़ क्लियर टू यू गाइस। हाँ, तो अभी हम देखते हैं इसके साथ के क्वेश्चंस क्या हैं पजल से रिलेटेड। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, देखिए 1 2 एंड 3, सो 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन आई एंड एफ। नेक्स्ट क्या कहता है, ई इज़ रिलेटेड टू जी, ओके। आगे बोलता है एफ इज़ रिलेटेड टू आई,
ओके, एफ इज़ रिलेटेड टू आई, ठीक है। देन इन द सेम वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू सी, तो सी से कौन रिलेट करेगा, ए रिलेट करेगा डेफिनेटली, ठीक है ना। सो ए विल बी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू बी, आई की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी, इमीडिएटली अबव है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 बॉक्सेस बिलो बी, नो। सेकेंड ऑप्शन है 1 बॉक्स बिलो सी, नो। सी है 4 बॉक्सेस अबव डी, नो। डी ऑप्शन है इमीडिएटली अबव ई, हाँ ये वाला क्या होगा, सही होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज़ प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल में कौन सा बॉक्स बैठा है, मिडल में बैठा है डी, ठीक है ना। 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, तो मिडल में बैठेगा डी बॉक्स। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज़ प्लेस इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो बी, बी के इमीडिएटली अबव है आई और इमीडिएटली बिलो है डी, सो आई एंड डी विल बी योर आंसर, ठीक है ना। So I hope this puzzle is clear to you. So that's all about today's session, guys. So if you want more useful videos like this, then please do subscribe and hit the bell icon. So thank you so much, guys. That's all for today.